नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ पे। तो इस वक्त हम मौजूद है अबोतनी हॉल हापोली पे। यहाँ पे 2 डेज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन वुमेन हेल्थ इशू यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ का जितना भी पब्लिक है जीरो का, आप सभी लोग यहाँ पे आइए। ये प्रोग्राम 2 दिन रहेगा, 11 और 12 दिसंबर को। यहाँ पे जो वुमेन से रिलेटेड, जो हेल्थ से रिलेटेड जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसका हम लोग का जो सॉल्यूशन क्या है और हम लोग कैसे अपना खुद को प्रिवेंट कर सकता है और क्या क्या हम लोग को फैसिलिटी मिल सकता है गवर्नमेंट के साइड से, उन सब का आज यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जा रहा है। और कल जो 12 तारीख है, जो 12 दिसंबर है, कल यहाँ पे जो डॉक्टर है उन लोग डॉक्टर आएगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्री चेकअप दिया जाएगा, जो जितना भी हम लोग का हेल्थ से रिलेटेड है। आप सभी लोग यहाँ पे आइए और अटेंड कीजिए प्रोग्राम को। एंड इसका बाद ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है जो यहाँ का हम लोग का अपतनी वुमेन एसोसिएशन जीरो, वो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद ज्ञाति ताका हॉस्पिटल। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम को और डिटेल में। एंड मैं सभी को बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारा एक्सपर्टीज आया हुआ है बाहर से भी, जो डॉक्टर्स है एंड जो बहुत नॉलेज वाला जो एक्सपर्टीज सब भी आया हुआ है यहाँ पे, जो हेल्थ से रिलेटेड फ्री में अवेयरनेस, फ्री में आप लोग को फैसिलिटी, फ्री में आप लोग को यहाँ पे मेडिसिन और फैसिलिटी क्या क्या दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग आइए। तो इसी तरह खबर जानने के लिए बने रहे अरुण भूमि के साथ। My name is Dr. Pakha. I am a consultant psychiatrist. I have come to Zero for an awareness talk on psychological health and addiction among young people. So basically today the talk was mainly pertaining to various psychological issues, taking it from in a very simple 3-point. I tried to cover it up. One thing was trauma related to, it can be physical, sexual. Then you can talk about important topic, suicide, which is very common among young people, and this is a very worrying trend. Even though we might be not having the full data, but it is a very common phenomena which we are witnessing all over India, even in our northeast. And then other one was mainly addiction among young people. Now addiction to drugs, which is in every news, police are coming out with a lot of reports of catching drugs from various peddlers. But as a psychiatrist, the most important point that I wanted to focus was that many of the people who are addicted to drugs, you can divide in 2 ways. Like one part of the patients one part of the community is that people who have not fallen into drugs, for which we need to talk about preventive aspect, awareness. And the other aspect is people who have already fallen into this trap, and we need to help them get proper treatment, get good rehabilitation, good psychotherapy, and of course involvement of community and the family members. So when we are looking at addiction, it is not just spreading awareness. We need to do something for their treatment, which I, as a psychiatrist, I would like to appeal to the government, the administration, to the community, to work for something which we can decrease the incidence. Because many of the addiction cases, it is not only the family who suffers, it is the whole community suffers. There are a lot of road accidents, a lot of thefts, a lot of young people, when they are in intoxication, they become impulsive, they can get into a lot of violent activities, they can get into suicide. All these things are psychological issues, which I have come and talked about it. तो सर ऐसे कुछ सिंबल है जो हमें जान सके कि हम लोग का जो बहन है, जो भाई है, जो डिप्रेशन से सफ़र करल के, ऐसा कुछ सिंबल है, कैसा पता चलेगा? लाइक ऐसा कुछ रीज़न मतलब क्यों डिप्रेशन होता है? ऑफ कोर्स डिप्रेशन हम जब साइकियाट्री में बोलते हैं तो ये एक बीमारी है ना। तो साइकियाट्री का जब ये बीमारी डिप्रेशन में होता है, 3 चीज़ों में आपको नज़र आएगा। इवन एडिक्शन ऑल्सो इन ओवरव्यू बोलने से, एक तो है कि थिंकिंग, उनका थिंकिंग प्रोसेस बदल जाता है। लाइक हमको पेशेंट को नेगेटिव थिंकिंग आने लग जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, रोने लग जाता है, इमोशनल एस्पेक्ट, थिंकिंग इमोशनल एस्पेक्ट, रोने लग जाता है, सुसाइड थॉट्स आने लग जाता है, बिहेवियर में समटाइम वो विड्रॉन हो जाता है, किसी से बात नहीं करता है, कॉलेज जाना बंद हो जाता है, या इट कैन भी चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। तो ये सब होने से बच्चों में अगर परिवर्तन उनका बिहेवियर या पर्सनालिटी में नज़र आ रहा है, तो ऐसे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या ब्रदर्स सिस्टर्स, हमको डाउट लगना है कि कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, या तो साइकोलॉजिकल इलनेस हो रहा होगा या ड्रग एडिक्शन हो रहा है। ड्रग एडिक्शन तो ऑफकोर्स घर वालों को तो पता चल जाता है, पैसे ज़्यादा मांगता है, घर में नहीं रहता है, हर समय बाहर घूमते रहता है, रेकलेस हो जाता है, बॉडी वेट कम हो जाता है। तो ये सब नज़र आने लग जाता है। सपोज़ कोई बच्चे हैं जो बाहर पढ़ाई कर रहा है, तो एक फॉर एग्जांपल यहाँ शिलोंग में काफ़ी बच्चे लोग कभी पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि बार बार घर वाले बोलते हैं कि पैसा मांग रहा है, या घर में आता ही नहीं।
तो हमारे ऐसा बहुत पेशेंट है हमारे अरुणाचल से जो काफ़ी लोगों को एडिक्शन हो चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स लोगों को पता नहीं है। तो फर्स्ट टाइम फैमिली मेम्बर को पता चलता है तो बहुत शॉक होता है, बट देन आई टेल देम कि प्लीज़ टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, कन्फाइड विद देम एंड सीक अर्ली हेल्प। तो जितना जल्दी हेल्प लेगा तो जल्दी अच्छा होने का चांस होता है। तो सर जैसे कि ड्रग्स हो गया या जो भी इमोशनली जो लोग हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हर एक स्टेट में या हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए बच्चों के लिए? देखो अभी इट इज़ प्रैक्टिकली तो इतना मुश्किल होता है, बिकॉज देखो अगर काउंसलर्स हो, साइकेट्रिस्ट हो, अगर हर स्टेट में पोस्टिंग होगा तो ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी या उनका प्रोग्राम में होगा। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट जो हम समझते हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, जहाँ हम लोग कहने लग जाते हैं आजकल एडोलेसेंस मेंटल हेल्थ, स्कूल मेंटल हेल्थ या कॉलेज मेंटल हेल्थ, तो इस तरह के प्रोग्राम होना चाहिए। लाइफ स्किल एजुकेशन के बारे में थोड़ा बच्चों को और विस्तार से उनको बताना होगा। कॉलेज का करिकुलम या स्कूल का करिकुलम में ये सब चीज़ें अगर किया जाएगा तो डेफिनेटली क्या होता है कि सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर टीचर्स लोग को मालूम है कि ऐसा होता है, डिप्रेशन ऐसा होता है या सुसाइड जब होता है तो इस तरह का फीलिंग होता है, तो टीचर्स को मालूम हो गया, स्टूडेंट्स को मालूम हो गया, तो वी विल हैव द कम्युनिटी एज ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज देखो कोई साइकेट्रिस्ट पोस्ट करना, अगेन आई एम सेइंग ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है। नाउ द गुड थिंग इज़ हमारे यहाँ स्टेट में अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट है, ट्रिम्स में है, डॉक्टर तामे है, डॉक्टर हनिया है, डॉक्टर इगम है। सो आई एम होपिंग इन कमिंग ईयर्स लॉट ऑफ अदर साइकेट्रिस्ट भी रहेंगे। तो लेकिन अगर एक ही देखा जाएगा तो हर कम्युनिटी में या हर सोसाइटी में इस तरह से मतलब फैसिलिटी आना तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो सर जैसे कि ये आवाज़ की तरफ से जो आज का प्रोग्राम रखा गया था, Yes. जो कि काफ़ी हेल्पफुल है पब्लिक के लिए, helpful, तो yes. उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन आवाज़, पतानी वुमेन एसोसिएशन ऑफ जीरो, जिन्होंने इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक को उन्होंने सेलेक्ट किया एंड पब्लिक को अवेयरनेस जगाने के लिए कोशिश किया। एंड वी नीड लॉट मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद जनरल सेक्रेटरी आवाज़ का मैडम अनिया। She personally called me and told me कि this is one very important issue which is coming up and which was there all this time. And I was also very lucky कि इस समय हमारा holiday था, तो I was very glad चलो हम भी आते हैं, तो आए हैं। And I am very thankful to Awaz for giving this opportunity. My name is Captain Prabjot and I have come here along with my fellow medical officer Captain Karan Mahajan. We both are medical officers in 756 BRTF Project Arunank Border Road Organizations. We have come here in association with Awaz to celebrate the International Year of Millets that is being celebrated along with by the Ministry of Defence, and we are celebrating it from the 1st December to 14th of the December. In view of this, we are doing the medical lectures and medical camps all over in the remote areas. Like in Huri, my unit is deployed on Hapoli Sarli Huri axis, and we have done the medical camp and lectures as well in Huri and Sarli. And today we have come here in association with Awaz to conduct a medical lecture today. The topic of today was the importance of vitamins and as well as the importance of millets in our life and on our nutrition. And tomorrow we are also going to conduct a free medical camp for all the locals here. आज स्पेशली हम लोग ने हेल्थ टॉक कर रखा है अवेयरनेस के लिए, तो हम लोग टारगेट किया था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अमंग द स्टूडेंट्स ये ड्रग्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और साइकेट्रिक डॉक्टर भी आया है। स्पेशली हम लोग साइकेट्रिक्स को उन लोग के लिए बुलाया था, बट देन स्टूडेंट्स लोग का अभी खबर किया तो प्राइवेट स्कूल्स का जितना भी है सारा वेकेशन हो गया एंड गवर्नमेंट स्कूल का हम लोग ने सारा इनवाइट किया, तो गवर्नमेंट स्कूल का भी शायद ज़्यादा नहीं आया, तो उन लोग का एग्ज़ाम्स की वजह से में भी बच्चा लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, नहीं आ पाया। बट देन बाकी पब्लिक बहुत आया, गामरस लोग आया एंड NGOs लोग आया। और कल हमारा मेन जो डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए रखा गया है, तो कल भी हमारा आई स्पेशलिस्ट रहेंगे यहाँ पे आई चेकअप करने के लिए। देन साइकेट्रिक डॉक्टर जो शिलोंग से आया वो रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। देन हम लोग होम्योपैथिक का भी रखा है, होम्योपैथिक डॉक्टर का, और कल फिर जनरल का भी है। एंड कल कंसल्टेशन के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा जो बेसिक मेडिसिन है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये मेडिसिन जो है DHS
ईटानगर से भी आया हुआ है, मेडिसिन दिया हुआ है हम लोग को। देन यहाँ पे जो BRTF का डॉक्टर जो आया हुआ है उन लोग भी हम लोग को सपोर्ट करके फ्री मेडिसिन लेके आया है, तो कल वो सारा दिया जाएगा। तो मैम आज जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे जो टेक्निकल सेशन में अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी हेल्थ को लेके, तो ड्रग्स को काफ़ी अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया गया था। तो आपको क्या लगता है मैम कि ड्रग्स को कैसे हैंडल करना चाहिए एग्जैक्टली? एक्चुअली DMO सर भी बोला कि ड्रग्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, SP सर को भी रिक्वेस्ट किया गया था, आपने खुद भी सुना होगा, तो उसके ऊपर क्या राय रहेगा? ड्रग्स का तो हम लोग इतना साल से तो कोशिश तो कर ही रहे हैं, बाकी NGOs भी ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर भी 100% हम लोग का नहीं हो पा रहा है। अभी बोले से तो हम लोग का 50% भी नहीं हो पा रहा है इसको मतलब इसमें फ़ाइट करने में। तो फिर भी हम लोग अपने तरफ से अवेयरनेस कंडक्ट कर रहे हैं। फिर पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू भी बहुत सारा जो पेडलर है पकड़ा जा रहा है। एक पेडलर पकड़ता है, फिर दूसरा नया पेडलर आ जाता है। तो इसको हम लोग सब मिल बांट के नॉट ओनली पुलिस डिपार्टमेंट, नॉट ओनली मेडिकल जो इसको रिहैब सेंटर में भेज के ठीक होगा, ऐसा भी नहीं है। सब सोसाइटी मिल के इसको कॉमनली इसको लेके हम लोग इसके ऊपर में काम करना चाहिए। तो अभी क्या बोलेगा इसको, तो मेन तो पेडलर है। पेडलर को हम लोग कैसे करके पकड़ें, कैसे करके ये करें। और जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सोसाइटी भी अगर कोई आसपास अपना पड़ोसी या कोई आसपास किसी भी अपना फ्रेंड होने से भी, कोई रिलेटिव होने से भी अगर कोई यहाँ पे ड्रग सप्लाई कर रहा है बोल के पता चलता है, तो इसको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। मेन तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ हम लोग का जीरो में, लोअर सुबनसिरी में एक रिहैब सेंटर होना चाहिए, स्पेशली जो ड्रग एडिक्टेड है उन लोगों के लिए? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ड्रग एडिक्टेड स्टूडेंट है जो फैमिली भी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम वाला है, जो बाहर नहीं बेच पाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ में एक रिहैब सेंटर होना चाहिए? तो हम लोग का गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? हाँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे एक रिहैब सेंटर होना चाहिए बोल के हम लोग फील कर रहे हैं। एंड इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइम कोई हमारा आयुष का मिनिस्टर जो सर्बानंद सोनोवाल जी आए थे, उस समय हम लोग एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया था कि यहाँ पे एक वेलनेस सेंटर खोल देने के लिए। तो अभी बस फॉलो अप करना बाकी है। तो अगर यहाँ जीरो बिंग ए सेंटर प्लेस, अगर यहाँ पे एक रिहैब सेंटर होता है तो कुरुंकमे का, क्रादारी का, देन इवन अपर सुबनसिरी का, देन कमले का, ये सारा चीज़ मतलब प्रॉब्लम वाला यहाँ पे हम लोग कॉमनली यहाँ हो सकते हैं। यहाँ एक होने से तो बहुत अच्छा है। और गवर्नमेंट को मैं अपील करूँगी कि इसके ऊपर यहाँ पे जीरो में थोड़ा सा ध्यान देने से ठीक है रिहैब के लिए। तो मैम जितना भी जहाँ जीरो का पब्लिक है उन लोगों को आप लोग का आवाज़ का साइड से क्या मैसेज रहेगा कल का प्रोग्राम के लिए ना? कल का प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी हम लोग ने मीडिया ब्रीफिंग भी दिया हुआ है। तो कल आई होप कि बहुत सारा आना चाहिए जो जिसका प्रॉब्लम, सिंस इट इज़ अ फ्री हेल्थ कैंप, तो फ्री हेल्थ कैंप का बेनिफिट उठाना चाहिए। इसीलिए मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूँगी, मतलब अपना पड़ोसी जो भी आज आए हुए हैं उन लोग भी अपने पड़ोसी को बताएं कि ऐसे कल फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप हो रहा है, तो सब चल के कुछ भी प्रॉब्लम है जिसका जो प्रॉब्लम है यहाँ आके दिखाएं। और मीडिया के थ्रू भी हम ये पब्लिसिटी तो किया हुआ है। तो आज आपके माध्यम से मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, फिर से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग सब आए और यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होने से दिखाएं। स्पेशली जिसका घर में जो बच्चे अपना फैमिली में ड्रग्स का प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, तो हमारा यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट को हम लोग शिलोंग से बुलाया, तो उसको कंसल्ट करें और वो अपने पास मेडिसिन भी लेके आया है। नॉट ओनली ड्रग्स, जैसे कि अभी कोई अल्कोहल में भी डूबा हुआ है, जो अल्कोहल एडिक्टेड वाला भी यहाँ कंसल्ट करने से ठीक है। एंड उसके तरफ से बहुत सारा ये है, जैसे कि हमारा यहाँ पे अमंग यूथ्स सुसाइडल थॉट्स आता है कि हम मर जाएगा इस टाइप का ना, तो उसके लिए भी कंसल्टेशन के लिए साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है, वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो वंस अगेन आई अपील थ्रू योर मीडिया कि हमारा पब्लिक कल का जो फ्री हेल्थ कैंप का बेनिफिट होता है और सब आए।
और हमारे जो DHS से डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जो डॉक्टर सुबू तासोकाम्पू ने आया, उन्होंने बहुत अच्छा अवेयरनेस दिया है, जो कि हमारा यहाँ पे सेंट्रल का और स्टेट का क्या क्या हमारा हेल्थ स्कीम्स है। तो उन स्कीम्स में से जैसे कि दुलारी कन्या, तो इसके तहत जो भी बेटी पैदा होता है उनका पेरेंट्स को 20,000 दिया जाता है। बट देन आपको पता होना पड़ेगा कि इसको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो हेल्थ वाले वहाँ आपको पूछ के नहीं देगा, तो आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा हेल्थ डिपार्टमेंट में। और कैसे अप्लाई करना है ये भी बहुत अच्छा से वो अवेयरनेस दिया है। देन ये हेल्थ कार्ड, एक आभा करके हेल्थ कार्ड है, तो ये हेल्थ कार्ड का बेनिफिट को भी उन्होंने बताया। और चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, इसके तहत हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि किडनी फेलियर हो गया, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, लंग्स ट्रांसप्लांट करना है, तो उन बीमारों के लिए हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से 5 लाख तक का शायद असिस्टेंस है, मेडिकल असिस्टेंस है। और एक है कि रन करके राष्ट्रीय आरोग्य निधि, इसके तहत हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 लाख का ये एक मतलब मेडिकल एड के तौर पे 15 लाख तक दिया जा सकता है। और इसमें भी जैसे कि मेजर प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे लंग्स ट्रांसप्लांट, जैसे पहले मैंने बताया, किडनी ट्रांसप्लांट एंड लिवर ट्रांसप्लांट, वो सब के लिए। और हमारा चीफ मिनिस्टर रेनल रिप्लेसमेंट स्कीम करके एक है, तो इसमें शायद 10 लाख तक का मेडिकल असिस्टेंट है। तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर काम्पू ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे अप्लाई करना है। तो इसका भी एक अलग से इस पर्टिकुलरली इस स्कीम्स को डील करने के लिए एक ऑफिसर है DHS में, तो उनके पास जाके आप इसको कैसे रजिस्टर करना है अच्छा से बता दिया। अगर किसी को चाहिए कि इसमें मतलब हाउ टू अप्लाई, किसी का अगर ऐसा बीमार हो गया तो बाहर ले जाना है, रुपया पैसा का कमी हो गया, तो हाउ टू अप्लाई, तो असिस्टेंट चाहिए होने से इवन आवाज़ को भी पूछ के कि कहाँ कांटेक्ट करना है, किसको या कहाँ जाके अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा है कि बस्ती वाला पता नहीं होता कि कहाँ पूछना है, किसको पूछना है, ऐसा करके मतलब बेनिफिट को उठा नहीं पाता। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट इतना मेडिकल में भी हमारा हेल्थ असिस्टेंट्स के लिए जो प्रोविज़न दे के रखा है, तो पता नहीं चलता। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि जो भी जिसका भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर उनको गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली दे कम टू आवाज़ एंड विल गाइड देम। थैंक यू सो मच।